بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اے جے چینل۔ زندگی کی ذہنی زنجیر۔ میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ ہے جب میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی نے مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر مجھے تنگ کرتی، میری کمزوریوں کا مذاق اڑاتی اور ہر وقت مجھے احساس دلاتی کہ میں ناکام ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے شہر میں روحان اور ریا کی شادی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ ساری دنیا سے ٹکرا کر یہ ایک ہوئے کیونکہ ذات اور برادری کے چکر میں 3 سال گزر گئے۔ خاندان کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے ایک ہونے کے لیے۔ روحان ایک کامیاب بزنس مین تھا اور ریا ایک خوبصورت گھریلو لڑکی۔ کافی سال پہلے ان کی ملاقات سڑک کے فٹ پاتھ پر ہوئی۔ ریا بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا ویٹ کر رہی تھی اور روحان وہاں سے گزرا اور لفٹ کے لیے بولا۔ ریا نے انکار کیا، پھر اپنی گاڑی سائڈ پر لگا کر گاڑی سے نیچے اترا اور ریا سے بولا، آپ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں جہاں میں پڑھتا ہوں۔ میں نے اکثر آپ کو وہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میں گاڑی میں جاتا ہوں اور میرا سٹاپ بھی یہیں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو یہاں سے پک کر لیا کروں گا اور آپ کو گھر تک بھی چھوڑ دیا کروں گا۔ اور میں جانتا ہوں سیمینار ہے اور آپ کا وہاں جانا کتنا ضروری ہے، اس لیے وقت برباد مت کریں اور میرے ساتھ چلیے اور مجھ پر بھروسہ کریں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ روحان ریا کو پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر ریا نے روحان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ پھر ریا نے اس پر اعتبار کیا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی طرح سے چند گھنٹوں کا سفر زندگی بھر کا سفر بن گیا۔ ملاقاتیں بڑھیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی محبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ شادی کے بعد ریا کی ذہنی حالت بدلنے لگی۔ وہ اکثر روحان سے دور بھاگتی اور روتی رہتی۔ روحان سے شادی کرنے پر اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی اور روحان کو الزام دیتی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھنے لگتی۔ روحان نے اس کی ذہنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی، گھر کے کاموں سے اسے دور رکھا اور سارا کام نوکروں پر ڈال دیا تاکہ یہ دماغی طور پر بالکل پرسکون رہے۔ کبھی کبھی باہر گھمانے لے جاتا، مگر وہاں بھی اس کا روحان کے ساتھ عجیب برتاؤ ہوتا۔ روحان سب کچھ کر کے دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ناکام رہا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ریا زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی اور اس کا یہ برتاؤ کافی شدت اختیار کر چکا تھا۔ ریا نے روحان کو ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتا یا پیار سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ اسے روز مرنے کی دھمکی دیتی، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتی اور اس کے دوستوں اور خاندان میں اس کے خلاف کرتی۔ روحان کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ ایک دن روحان نے ریا کو غصے میں آ کر دھمکی دی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ریا، تمہاری ذہنی حالت نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ریا نے روحان کو دیکھا اور بولی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم میرا سب کچھ ہو۔ ریا کے اس جواب نے روحان کو اور بھی زیادہ دکھی کر دیا کہ اگر یہ مجھے چاہتی ہے، میری دوری برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تو پھر مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی؟ مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتی؟ کیا اس کے دل میں کوئی اور ہے؟ مجھ سے میری محبت کی خاطر شادی کی؟ ایسے عجیب وسوسے پیدا ہوئے۔ ایک دن روحان نے سوچا، کیا یہ محبت ہے یا صرف ایک کھیل ہے؟ وہ اپنی باتوں سے نیچا دکھاتی اور وہ ہر بار خاموش رہتا۔ دل میں ایک عجیب سا درد ہوتا، جیسے کوئی چور اس کے احساسات چوری کر رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، کیا وہ واقعی اتنا کمزور ہے؟ کیا اس کی زندگی کا مقصد صرف اس کی خوشی ہے، یا پھر یہ خود کے سکون کی خاطر اور اس کو خوش کرنے کی خاطر بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اور اسی طرح سے وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ مگر ریا کی منمانیاں اور اس کے جھگڑوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سوالات اس کے دماغ میں گونجتے رہے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے خود کے اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں اپنی طاقت کو پہچاننا پڑتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس نے اپنے رشتے کو سنبھالنے کا عزم کیا اور یہ جان لیا کہ محبت میں بھی خود کی استنفس بہت ضروری ہے۔ مگر جب بات محبت کی ہوتی ہے تو بادشاہ بھی فقیر بن جاتا ہے اور دماغ کی بجائے دل سے کام لیا جاتا ہے۔ روحان کے پاس 2 چوائس تھیں، یا تو وہ ریا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا اس کے پاگل پن کی وجہ سے، یا پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا
और इस मसले का हल ढूंढता, क्योंकि इसकी ये आदत ना तो इसे ऑफिस में ठीक तरह से अपने काम पर फोकस करने दे रही थी और ना ही घर पर वो पुरसुकून होता था। हमेशा इसी सोच में रहता था कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। वो नफ्सियाती डॉक्टर को भी चेक करवा चुका था, मगर कोई हल ना मिला, क्योंकि डॉक्टर को देखते ही वो अपना मुंह बंद कर लेती थी, जैसे इसके मुंह में जुबान ही ना हो। और अगर इसे ज़्यादा सवालात करते तो वो चीखने लगती कि मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे यहाँ पर ले आई हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब पागल हो। फिर एक दिन रूहान ने रिया से छुपकर अपने घर की छत पर एक खूबसूरत सा पार्टी का इंतज़ाम किया। इस दिन रिया की बर्थडे थी और रूहान सरप्राइज पार्टी देना चाहता था। हर तरफ खूबसूरत सफ़ेद पर्दे और लाल कारपेट और टेबल्स पर पड़े हुए थे, सफ़ेद कवर और इन पर सजे हुए गुलदस्ते, कैंडल्स और दरमियान में खूबसूरत सा केक सजाए। हल्का सा म्यूजिक लगाकर छत पर रिया का इंतजार कर रहा था। रिया को फ़ोन किया और कहा कि छत पर आ जाओ। रिया ने नींद में फ़ोन पिक किया और कहा कि खैरियत है, इस वक्त छत पर क्या कर रहे हो, क्योंकि इसे अपनी बर्थडे का बिल्कुल भी याद नहीं था। वो अक्सर चीज़ें भूल जाया करती थी। रूहान ने कहा, एक बार छत पर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। रिया दबे कदमों के साथ छत पर आई। जब दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल हैरान रह गई और इसका मुंह खुला रह गया। रूहान ने हल्की मौसीकी के साथ हल्की रोशनियां ऑन की और रिया का हाथ पकड़कर टेबल के पास आया और इस पर सजे हुए केक के करीब ले आया। जब प्यार से रूहान ने रिया का हाथ पकड़ा और इसके हाथ में फूल थमा दिया तो वो चुपचाप खड़ी हुई एक बुत की मानिंद इसे घूर रही थी। फिर रूहान मुस्कुराया और अपनी जेब से एक नेकलेस निकाला और इसको पहना दिया। फिर केक काटने के लिए जब छुरी की तरफ बढ़ा तो रिया ने झट से छुरी उठाई और रूहान पर चला दी। रूहान ने अपना बाजू आगे किया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। रूहान ने रिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, फिर इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और कहा, ये क्या बकवास है, क्या पागलपन है ये। रिया फिर से वही हरकतें करना शुरू हो गई। हाँ, मैं पागल हूँ और तुम्हें अपने पागलपन का जलवा आज दिखा कर रहूँगी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। रूहान ने रिया को दोबारा थप्पड़ मारा और साथ में पड़ा पानी का गिलास इसके मुंह पर मारा। वो पानी से भीग गई और फिर थोड़ी होश में आई और बोली, इस वक्त छत पर क्या कर रही हो, इतना खूबसूरत मंजर, ये सब तुमने अरेंज किया है मेरे लिए। रिया का चंद लम्हे में बदलता बर्ताव रूहान को भी पागल बना रहा था। रूहान ने भीगे हुए चेहरे से बाल हटाए और इसकी पेशानी पर बूसा दिया, फिर गले लगाया और इसके बालों को सहलाया और इसके बाद कुर्सी पर बिठाया। फिर रूहान ने इसके बर्ताव की वजह पूछी। रूहान ने रिया की आंखों में वो दर्द देखा जो पहले कभी नहीं देख पाया था। फिर रिया बुलंद आवाज़ से रोने लगी। रूहान ने कहा, मुझे अपने इस दर्द की वजह बताओ जो मैं इस वक्त तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। फिर सजे हुए टेबल के साथ टेक लगाई और फर्श पर बैठ के बोली, आज से 20 साल पहले जब मैं सिर्फ 4 साल की थी तो मैं बहुत ज़हनी अजियत का शिकार हुई, क्योंकि मेरे माँ बाप हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। मेरी माँ एक अमीर घराने से थी और बहुत खूबसूरत थी, जबकि मेरा बाप एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक मामूली क्लर्क था। इनकी आपस में लव मैरिज हुई थी, जिसके ताने मेरी माँ को हर रोज़ सुनने को मिलते थे कि अगर तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हो सकती हो तो किसी और से भी चक्कर चला सकती हो और लोगों के साथ भी तुम्हारे ताल्लुकात होंगे। मेरी माँ ऑफिस में काम करती थी। मेरे बाप के तानों की वजह से इसने अपना मायका बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी मेरी माँ मेके से कुछ लेकर आती तो मेरा बाप अजीब किस्म के ताने कसता कि इनकी मेहरबानी और नवाजिशों का मतलब मैं सब जानता हूँ, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, और जो तुम बन ठन कर सच सवर कर जाती हो ऑफिस में, इसका मतलब भी मैं खूब जानता हूँ। पहले मुझे अपने जाल में फंसाया, अब कोई और ढूंढ लिया होगा। अजीब कॉम्प्लेक्स का शिकार था। फिर हर बार मेरी माँ का एक ही जवाब होता कि अगर मैं काम ना करूँ तो घर का खर्च कैसे चलेगा। जितनी आजकल की महंगाई है, सिर्फ आपकी आमदन से ये घर नहीं चल सकता। इस बात पर इन्हें और गुस्सा आता और मेरी माँ को मारने लग जाता कि तुम अपनी कमाई का रौब जमाती हो। माँ जब भी मैके वालों के पास शिकायत लेकर जाती तो आगे से यही जवाब मिलता कि ये तुम्हारी चॉइस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब स्टेटस का फ़र्क होता है तो ज़हनियत का भी अक्सर फ़र्क आ जाता है, मगर तुम ये बात नहीं समझती थी। अब खुद ही भुगतो।
इसी तरह से झगड़े बढ़ते गए और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि मेरी माँ ज़हनी दबाव का शिकार होने लगी और बीमार रहने लगी। मेरे बाप ने मेरी माँ का बिल्कुल ख्याल रखना छोड़ दिया और वो हर रोज़ रात गए तक वापस आता और अपनी नौकरी भी छोड़ चुका था। मेरी माँ बीमार थी, इसलिए नौकरी भी छूट गई, जिसकी वजह से घर के हालात अच्छे नहीं रहे। मगर मेरे बाप को बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी। वो दवाई तक माँ को ना ला के देता। इसी तरह से माँ बिस्तर पर पड़ गई, सिसक सिसक कर मर गई और हमें तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल अच्छा ही नहीं था। फिर एक दिन मैं अपना घर छोड़कर सड़कों पर निकल आई और फुटपाथ पर बैठी रो रही थी कि अचानक मेरी माँ की दोस्त वहाँ से गुजरी। वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, मगर बड़े दिल वाली थी। वो मुझे अपने घर ले गई और मेरी अच्छे से देखभाल की। मेरी वजह से इसने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करवाई। वो जब भी शादी करने का सोचती तो मेरी माँ की ज़िंदगी का तजर्बा इसके सामने आ जाता, इसलिए इसने कभी शादी नहीं की और अपना सारा वक्त मुझे दिया। मैं भी इसे माँ बुलाती थी। इसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस मकाम तक पहुँचा दिया। मेरी शादी हो गई, मगर अभी भी मेरे दिलो दिमाग से वो बचपन का ज़हनी दबाव नहीं गया। मेरी माँ के मरते हुए वो आखिरी अल्फाज कि कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करना और लव मैरिज करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि ना तुम आगे की रहोगी और ना पीछे की। ये अल्फाज मेरे हमेशा दिमाग में रहे। मगर मैं तुमसे मिली और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुमसे इस तरह ज़िंदगी भर दोस्ती रखना चाहती थी, मगर तुमने ज़िद की और मैंने तुमसे शादी कर ली। मगर मर्दों को लेकर जो मेरे दिल में नफ़रत थी वो आज तक नहीं गई, और जिस तरह से मैंने अपनी माँ को सिसकते हुए देखा वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम मुझ पर गलबा पा लो, मैंने इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी, ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फ़ासला बना रहे और तुम मुझ पर हावी ना हो सको। मगर सच बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मगर माजी की तल्ख यादें मुझे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ना तुम्हें शादी का सुख नसीब हुआ और ना मैं खुद को सुकून में रख सकी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी इस अज़ियतनाक माजी के दर्द से आज़ाद नहीं हो सकती। मैंने अपने साथ तुम्हारी ज़िंदगी को भी जहन्नम बना दिया। मुझे माफ़ कर देना। फिर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मुझे तलाक दे दो और मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाओ, जहाँ तुम्हारे साए को भी मैं छू ना पाऊँ। रूहान ये सब सुनकर लंबी आह भरते हुए इसे अपने गले लगाया और कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे तलाक लेकर मुझे छोड़कर मेरी मोहब्बत से फ़रार हासिल कर सकती हो? रिया ने आंख में आंसू भरकर रूहान की तरफ देखा, फिर अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोली, शायद नहीं, कभी भी नहीं। रूहान ने कहा, तो चलो फिर एक वादा करो मुझसे कि जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करोगी। देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मुझे दुख है इस बात का, मगर सब लोग एक जैसे नहीं होते और एक शख्स की खातिर तुम सब की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं एक अच्छी साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, तुम मेरे साथ वहाँ जाया करोगी और वापसी पर हम हर रोज़ घूम फिर कर आया करेंगे और मैं अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता हूँ। 3 माह तुम्हारे साथ गुजारूंगा और जब तक तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं हो जाती मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मैं तुम्हें अपने इस माजी की तकलीफ़ से निकाल कर रहूँगा, वादा रहा मेरा। इसके बाद इनकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता रिया को अपने करीब किया और फिर रिया ने ज़िंदगी की खुशियों को महसूस करना शुरू किया और इसकी तवज्जो अपने माजी से हटने लगी। फिर एक दिन इसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आप दोनों के लिए खुशखबरी है। 1 साल के बाद इनका खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ और रिया इसी में मसरूफ़ हो गई और इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। सच कहते हैं कि अगर साथी अच्छा हो तो ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल कठिन राहों की पुलसरात भी आसानी से पार हो जाती है। क्या आपको ये नावल पसंद आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्क्रिप्ट राइटर अनम जवाद, वॉइस ओवर अनम जवाद।